خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں بڑی عید کی بڑی تیاریاں گورنر ہاؤس میں اونٹ 100 بکروں اور 10 بیلوں کی اجتماعی قربانی کی جائے گی۔ گورنر کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی گیٹ نمبر 1 پر مستحقین میں گوشت کے ساتھ راشن بھی تقسیم کیا جائے گا۔ کامران ٹیسوری نے سانگھر میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے والے شفاق ملزمان کے خلاف سخت ایکشن کا بھی مطالبہ کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ اجتماعی قربانی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ بکروں، بیل اور اونٹوں کی قربانی کے گوشت سمیت 20,000 مستحقین کے لیے راشن بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ گورنر ہاؤس میں اگر آپ دکھائیں تو ان اونٹوں بیلوں کی قربانی عوام کے لیے کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کلچر جسے ہم نے چینج کیا ہے۔ ہمیں یہ میسج دینا ہے ارباب اختیار اور صاحب ثروت لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں اسٹیٹس کو توڑ دیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، وہ آگے بڑھے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ حیدرآباد سلنڈر دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں 5 کروڑ 27 لاکھ روپے تقسیم کرنے کا وعدہ وفا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے خاندانوں کو سولر سسٹم لگا کر دیا جائے گا۔ عید کے بعد 2 اور انیشیٹوز ہیں، جس کے بعد ہر گھر میں، ہر محلے میں آپ کو فری ڈاکٹر اور فری میڈیسن نظر آئے گی۔ اس کا ہم نے پورا کام تیار ہو گیا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ عید کے بعد ایک فائنل میٹنگ ہے۔ اسی طرح جیسے آج سولر کا ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے، لوگوں کے لیے فری ڈاکٹر اور فری میڈیسن کا ہم پروگرام انشاءاللہ میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے اس کا اعلان کریں گے۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح کو ختم کرنے کے لیے جلد گورنر ہاؤس سندھ کے تحت گورنر جاب پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ گورنر سندھ نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی کے واقعے میں اصل ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا، جس نے کیا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اور عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ شہر قائد میں 12,700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ قربانی کی کھالوں کے کلیکشن پوائنٹس، شہر کے تمام بازاروں، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس اور پرہجوم مقامات پر سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ کنٹیجنسی پلان پر اس کی روح اور ترجیحات کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بڑی عید پر سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب بن حاس کی ہدایت پر شہر بھر کی مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں کے حوالے سے سخت حفاظتی اقدامات۔ نماز عید کے موقع پر 12,781 سے زائد پولیس کے افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر ایسٹ زون میں 5600 اہلکار، ساؤتھ زون میں 3,656 اہلکار اور ویسٹ زون میں 3,525 اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ شہر بھر میں قربانی کی کھالوں کے کلیکشن پوائنٹس پر 2,170 افسران و جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے تاکہ کسی بھی قسم کے واقعے سے بچا جا سکے۔ کراچی شہر میں موجود تمام بازاروں، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس اور پرہجوم مقامات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ٹریفک پولیس کو عید کے موقع پر ٹریفک کی بلا تعطل روانی کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کی۔ ادھر وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے ہدایت کی ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سیکیورٹی پر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ عید الاضحیٰ کنٹیجنسی پلان پر اس کی روح اور ترجیحات کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جرم قربانی کو اکٹھا کرنے اور منتقلی کے حوالے سے جاری تحریر اجازت ناموں اور دیگر ضروری دستاویزات کی چھان بین کے عمل کو ممکن بنایا جائے۔ اور آج سے عید کے تینوں دن گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ سوئی صدرن گیس کا صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا اعلان۔ عید کے تینوں دن گیس فراہم کی جائے گی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عید کے تینوں دن گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ سوئی صدرن گیس کا صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا یہ اعلان کیا گیا ہے اور اسی پہ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے۔ کاوش بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں گیس بندش سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ سوئی صدرن گیس کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں دن گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، یعنی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سوئی صدرن گیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن علاقوں میں گیس بندش کی شکایت ہوگی ان کو دور کرنے کے
लिए इकदाम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन। शहरियों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। नाजिमाबाद 2 नंबर में लगी मवेशी मंडी में शहरियों का रश, खरीदार और व्यापारी दोनों अपनी बात मनवाने में मसरूफ। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। वक्त कम और मुकाबला सख्त। नाज़िमाबाद नंबर 2 में सजी मवेशी मंडी में मामूल के मुताबिक खरीदारों का रश, शहरियों का मवेशियों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंचने का शिकवा। 3 घंटे से खुआर हो रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि ये लोग मुँह ही नहीं लगा रहे। एक मिडिल क्लास बंदा क्या करे और कहाँ से ले? जो 80 रेंज की जानवर में है ना, उसके 240 270 इस तरह से मांग रहे हैं। एक मिडिल क्लास बंदा कैसे लेगा, आप मुझे बताएं। शहर की तमाम छोटी बड़ी मवेशी मंडियों की तरह नाज़िमाबाद में कायम मवेशी मंडी में भी कम कीमत के कुर्बानी के गाय बैल नापेद रहे। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह मिडिल मैन के बढ़ते किरदार और कीमतों पर चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म का ना होना बताते रहे। हम लोग 2-3 बार मंडी आए और गाय नहीं मिली, बहुत महंगी है गाय। ऐसे महंगे हुए हैं, हम सुबह से परेशान हुए हैं। कल अल्लाह की राह में हम कुर्बानी करेंगे। माजी में शहर कायद में ईद कुर्बा के पहले और दूसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का रुझान रहा है, जो इस मर्तबा भी बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मिशन जारी। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मवेशियों के ऊंचे दामों से शहरी परेशान। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मनपसंद मवेशी की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मवेशी कम और खरीदार ज्यादा होने से कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खरीदारों की जानिब से मनपसंद और जेब के मुताबिक मवेशी खरीदने के लिए कोशिशें जारी। नॉर्मल एक मन का जानवर, 1.5 मन के छोटे छोटे जानवर है जो आम दिनों में शायद 50,000 मिल जाए, वो 1,20,000 1,40,000 के मुंह से मांग रहे हैं। पिछले साल जो 1 लाख में मिल रहा था वो 180 2-3 दिन पहले भी आए हैं। अब बस इन लोगों ने एक रट लगाई हुई है 280। यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से सौदा बन नहीं पा रहा है। इधर घूम घूम के थक गए हम लोग सुबह से। मंडी में औसतन 2 से 2.5 मन की बछिया या बछड़े के 2 लाख रुपए और उससे जायद मांगे जा रहे हैं। व्यापारी किसी भी सूरत कीमतों में कमी के लिए तैयार नहीं। इधर खर्चा है 5,500 इसने टैक्स लिया हमारे से। देख ले 5,500 टैक्स लिए, देख लाइटें खत्म हो गए, पानी जानवर को नहीं मिल रहा है, हमारे को रोटी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, हम क्या करें। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि मंडी से खाली हाथ जाने को तैयार भी नहीं है। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ने लगा, जिसके लिए अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत मस्जिद कुबा में शहर की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी की जाएगी, जिसमें 800 गायें और 800 से ज़ायद बकरे कुर्बान होंगे। जबकि कुर्बानी के मौके पर सफाई सुथराई के भी ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। आगे नमरूद से अजीम तरीन शहर मक्का की नई बुनियाद रखने वाले अजीम पैगम्बर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खैरात अकीदत। दुनिया भर की तरह कराची में भी सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां रिवायती मजहबी जोशो जज्बे से जारी। शहर में इनफरादी के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया, जिसमें 800 गायें और 800 से ज़ायद बकरे कुर्बान किए जाएंगे। अभी तक हम 800 के टारगेट पे हैं। इंशाल्लाह 800 गाय समझ लीजिए तकरीबन 5,600 हिस्से इन 3 दिनों में करेंगे। उसके अलावा बकरे अलग हैं जो इंशाल्लाह 800 से ऊपर ही होंगे। तो ये तकरीबन 6,500 लोगों को हम हिस्से देते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी के मौका पर सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुंसमीन कहते हैं कि टाउन म्यूनसिपल के ताउन से कोशिश की जाती है कि इलाका मकीनों को किसी किस्म की जहमत ना हो। टाउन के तहत सफाई का भरपूर ख्याल किया जाए और जितनी अलाइशें हैं वो मस्जिद कुबा गुलबर्ग में है, उसकी जो 4 दीवारी है उससे बाहर हम कोई अलाइशें नहीं जाने देते, इंश्योर करते हैं। और उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जमात के लोग वहाँ पे भी मौजूद हैं और वो सारी अलाइशें यहाँ से उठाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अल-खिदमत के तहत इज्तिमाई कुर्बानी में सबसे सस्ती कैटेगरी 14,000 रुपए गाय का फी हिस्सा मुख्तस किया गया है, जो मुतवस्सित तबके के लिए तवज्जो का मरकज है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने शाह फैसल टाउन के मरकजी दफ्तर में कायम शिकायती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया।
सैयद जवाद मुजफ्फर कहते हैं कि कोशिश है रेवेन्यू और के इलेक्ट्रिक को भी शिकायती मरकज से जोड़ दिया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहरियों के मसाइल के खात्मे के लिए अहम इकदाम। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने शाह फैसल टाउन के शिकायती मरकज का इफ्तिताह किया। बोले रेवेन्यू और के इलेक्ट्रिक को भी इसकी शिकायत मरकज से मुंसलिक करने की कोशिश की जाएगी। हमारा जो रेवेन्यू का और न सिर्फ रेवेन्यू, इसके अलावा जैसे वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को आप इसी एक छत के अंडर इंटीग्रेट करें ताकि जो कंप्लेंट सेल है वो और फाल हो। के इलेक्ट्रिक का भी एक डेस्क होना चाहिए, उनका एक फोकल पर्सन इधर होना चाहिए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने बताया कि शिकायती मरकज के कयाम से अवामी शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन हो सकेगा। इसे सोशल मीडिया से लिंक किया है, जल्द ऐप भी मुतारिफ कराएंगे। मुस्तकबिल में यही हमारा है कि हम इसको ऐप का मुतारिफ कराएंगे और लोगों को सहूलत देंगे कि उन्हें कंप्लेंट सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर या हमारे ऐप पर या हमारे वेबसाइट पर कंप्लेन करे, वो सारा सिस्टम यहाँ मौजूद है और उनकी वो कंप्लेन इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर हल होगी। शाह फैसल टाउन का शिकायती मरकज ईद में बिला नागा 24 घंटे अवामी शिकायत की वसूली और उनके अजाले के लिए मुतहरिक रहेगा। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एक करीब आते ही परदेसी घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्ट माफिया की चांदी हो गई। किरायों में मनमाने इजाफे पर महकमे ट्रांसपोर्ट खामोश तमाशाई बन गया। तफसीलात हम जानेंगे मीर की की रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से लाड़काना का किराया 1500 रुपए की जगह 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। इस्लामाबाद का किराया 5000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर केरियो, सिटी 21। ईद कुर्बान पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 1200 से ज्यादा मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों से लिया गया इजाफी किराया वापस कर दिया। मुसाफिरों को 22 लाख रुपए से जायद किराया वापस किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसाद नोहरियों की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत। शर्जील मेमन की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक 1212 मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया। मुसाफिरों से लिया गया इजाफी किराया भी वापस कर दिया। सिंध में तकरीबन 22,73,750 रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। मुलव्विस ट्रांसपोर्टर पर 9,38,800 रुपए जुर्माना भी किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कराची में 637 मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया। कराची के मुसाफिरों को 9,26,350 रुपए किराया वापस किया गया। कराची के ट्रांसपोर्टर पर 2,12,500 रुपए जुर्माना किया गया। फील्ड अफसरान ने रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट को अरसाल कर दी। 14 फील्ड अफसरान ने 15 जून को रिपोर्ट पेश की थी। बड़ी ईद पर सब्जियों की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। 2 दिन में प्याज की कीमत में 30 रुपए बढ़ने से अब प्याज 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। ईद से एक रोज कबल सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शहर के हफ्ता बाजारों में दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। हरा मसाला, प्याज, टमाटर की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर। टमाटर 240 रुपए तक पहुंच गया। प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। आलू 80 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हरा धनिया फी गड्डी की कीमत 23 रुपए, पुदीना फी गड्डी 20 रुपए तक पहुंच गया। लहसुन 480 रुपए किलो तक दस्तयाब। अदरक शहर में 600 रुपए किलो दस्तयाब है। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की भी चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं हर त्योहार पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सब्जी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। धनिया जो है वो भी 40 रुपए का, 50 रुपए का। धनिया इतना सा होता है, वो भी 40-50 रुपए का है। समझ आई? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? महंगाई बहुत हो गई है भाई। जो तनख्वाह पता नहीं चलती गई कहाँ। 20-25 हजार रुपए तनख्वाह, वो भी पता नहीं चलती सब्जियों में कहाँ गई। पहले तो ये कि हम 100 रुपए के भी टमाटर लेते थे, हमारे 10-15 दिन चल जाते थे। अब तो वो अभी 200 रुपए के टमाटर लिए हमने, 50 रुपए का धनिया लिया है। इस कदर की महंगाई है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो सके। ईद उल अज़हा के मौके पर अंगीठी, कोयले और सीखों की मांग में इजाफा हो गया। चटपटे खानों की तैयारी के लिए शहरी अंगीठियाँ, कोयले और सीख की खरीदारी में मसरूफ हैं। कोयला 100 से 150 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। मज़ीद हम जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में।
शहरियों ने ईद के खानों के प्लान को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। कुर्बानी के बाद बारबेक्यू की तैयारियां। शहरी अभी से अंगीठियां, कोयला और सीखें खरीदने में मगन। दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रवां साल शहरियों का रुझान इस जानिब कम है। महंगाई ने कारोबार मुतासिर कर दिया है। पिछले साल जो है तकरीबन 80 रुपए किलो कोयला चलाया हमने, और इस बार जो है हम लोग 100 रुपए किलो कोयला चला रहे हैं। कोयला पीछे से बहुत महंगा है, मिक्स माल बहुत आता है, लोग 150 चला रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना स्टॉल हम 100 चलाते हैं इसमें। नहीं, वो बात नहीं है कारोबार में, क्योंकि पहले के जो काम चलता था वो बहुत अच्छा काम होता था, अब काम नहीं है क्योंकि हम खुद फारिग बैठे हुए हैं यहाँ पे। दुकानों पर मुख्तलिफ इकसाम की अंगीठियाँ मुख्तलिफ दामों पर दस्तयाब हैं। शहरी अपनी कुव्वत खरीद के हिसाब से तमाम अशिया खरीद रहे हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ आइमा खान, सिटी 21। ईद उल अज़हा पर बसियारखोरी से परहेज़ करें। डॉक्टरों ने गोश्त खोरों को मुहतात रहने का मशवरा दे दिया। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदाल इख्तियार करने का भी मशवरा दे दिया। माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर फरीहा कहती हैं ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, फूड पॉइज़न और दीगर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद पर मजेदार पकवान के चटपटे जायके, टिक्के, सीख कबाब, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त समेत दीगर अनवाओ इकसाम के खाने ईद उल अज़हा की रौनक समझे जाते हैं। लेकिन ठहरिए, इनसे लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। ईद उल अज़हा पर मुसलमान जहां जानवरों की कुर्बानी करते हैं, वहीं अगला मरहला गोश्त से चटखारेदार खानों का आता है। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा दिया। डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिससे दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत एहतियात करनी होती है, जो कि आपके मैदे को असर ना करें, बहुत आप हैवी ना हो, एकदम चिकनाई का मिकदार आपके खून के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वक्फा दें। इसको देख के दीवाने नहीं होना कि बस अब हमने आज मटन की दावत है तो फिर बीफ की दावत है, नहीं। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे पोर्शन को कंट्रोल करके। दूसरा, आप शामिल करेंगे समझ लें कि बहुत तेल में पका हुआ खाना नहीं। माहिर ग़िज़ाइयत ने मज़ीद कहा कि गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करके मसाइल से बचा जा सकता है। कोशिश करें कि खाने में एहतियात करें, पोर्शन को कंट्रोल करें, और अपनी ग़िज़ा में जो है वो जैसे दोपहर का टाइम है या रात का टाइम है, उसमें खाने के साथ जो है वो दही का इस्तेमाल और सलाद, सब्जियों के तौर पे सलाद का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर चंद एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद से सेहतमंदी के साथ ईद की खुशियाँ दुबाला की जा सकती हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी इख्तिताम पसीर हो गई। कुछ शहरी मवेशी खरीदने में कामयाब तो कोई जानवर लिए बगैर ही घर को लौट गया। शहरी कहते हैं कि जानवर बहुत महंगे थे, सुबह से जानवर की तलाश करते रहे, अब खाली हाथ घर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी तौर पर कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई थी, जो कि अब आज अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं मवेशी मंडी जहां पर लगाई गई थी, मैं उसी मुकाम पर नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हूं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, अब्दुल मन्नान आपको दिखा सकें, तो इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है। और इस वक्त यहाँ पर जो मीडिया सेल बनाए गए थे और इसके अलावा जो सहूलियात के लिए टेंट लगाए गए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। और शहरी जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद थे, वो लोग भी जिनके सौदे बन गए, वो अपना जानवर जो है वो लेकर यहाँ से रवाना हो गए। जबकि बहुत सारे शहरियों को हमने देखा कि वो जो है वो बग़ैर जानवर लिए मवेशी मंडी से खाली हाथ घरों की तरफ लौटे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि घर की तरफ जा रहे थे, हमने इन्हें रोका, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा ज़रा, आप मवेशी मंडी आए थे, कब आए थे और अभी क्या मंडी? हम लोग सुबह से आया हुआ है, सुबह से आया तकरीबन KPK, सबसे पहले हम लोग KPK पे चला गया, फिर पंजाब पे चला गया। पहले अगला साल जो था बहुत अच्छा रेट में मिल रहा था, बहुत सस्ता मिल रहा था। जो अगला साल पंजाब वालों ने नुकसान किया ना, ये सारे उसके नुकसान की वजह से हुआ है। पिछली साल में आपको जानवर मिला? कोई जानवर अभी तक हमें नहीं मिला, हमने ढूंढा हमें जानवर हमें नहीं मिला अभी तक। भाई क्या कहेंगे, आप लोग वापस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जा रहे, कोई जानवर यहाँ नहीं मिल रहा, हमें सब सन्नाटा पड़ा, खाली पड़ा है। वापसी अब घर जा रहे हैं, आसपास इलाकों में देखेंगे, वहाँ जानवर ढूंढने तो मिल जाएगा। भाई आप क्या कहेंगे, जानवर लेने आए थे, मंडी में जानवर मिला?
जानवर ही नहीं मिला। यहाँ एक बात है, गवर्नमेंट का यहाँ सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए चीज़ें नोट करें। अब एक्सपोर्ट खोला हुआ है, अभी इन लोग के पास हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग को सिखाते हैं कि भाई एक्सपोर्ट खुला हुआ है, माल इतना महंगा है, ये कुर्बानी के। हम तो गरीब आदमी तो पिस गए ना यार। हम बेचारे ऊबर के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे बेचारे, अब हमें जानवर ही नहीं मिल रहा है। और अब क्या करो, घर वापसी? घर वापसी है, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अब सो जाएंगे घर जाके। ठीक है, यकीनी तौर पर शहर कराची के जो लोग मवेशी मंडी आखिरी रोज आए थे, सुबह से घूमते रहे, उन्हें जानवर जो है वो नहीं मिल सके। लेकिन अब जो है वो मवेशी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है। शहरी जो है वो बहुत सारे कुछ के सौदे भी बने, वो अपने जानवर भी लेगा, लेकिन बहुत सारे शहरी जो है वो मवेशी मंडी से अब खाली हाथ घरों की तरफ लौट रहे हैं। जी नाज़रीन, सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार ऊंट इलाज के लिए कराची मुंतकिल। मसनूई टांग लगाने का फैसला। वज़ाला सिंध ने ऊंट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस ले लिया। इलाज मुआलजे के लिए ख़ुसूसी हिदायत भी जारी कर दी। ऊंट की टांगें काटने वाले 5 बाअसर अफराद को मकामी अदालत ने रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया। IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। ज़बान जानवर पर जुल्म, खेत में घास खाने पर सफाक वडेरे ने ऊंट की टांग काट डाली। मुतासरा ऊंट को कराची एनिमल शेल्टर सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां ऊंट की मसनूई टांग लगाई जाएगी। इधर वजीर आला मुराद अली शाह ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया और इलाज मुआलजे के लिए खुसूसी हदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि बेज़बानों से जुल्म और ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक काजिम जुतई को हदायत की कि जख्मी ऊंट के इलाज मुआलजे का कराची में बंदोबस्त करके रिपोर्ट फ्राहम करें। उन्होंने हदायत की कि ऊंट को मसनूई टांग लगाकर चलने फिरने के काबिल बना। दूसरी जानिब ऊंट की टांग काटने पर पुलिस ने 5 मुल्जिमान को धर लिया। SSP सांगड़ ने बताया कि 5 मुल्जिमान में से 2 मुल्जिमान शकूर शर और आबिद शर ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान में रुस्तम खान, जाफर अली, गुलबेग और दरिया खान शामिल हैं। मकामी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कसूरवार के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। कि कोई वडेरा हो या कोई इसमें ऐसा बंदा अगर वो गुनाहगार है और उसने ये किया है तो पुलिस उसको बिल्कुल गिरफ्तार करेगी। आप मतलब इसके अपने एंड पे भी तहकीक करें। ये सिर्फ मतलब ये कि हाफ फैक्ट्स को बेस बना के कि भाई ये वडेरा इन्वॉल्व है, पुलिस को पकड़ नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। जो भी गुनाहगार होगा, मैंने आपको कहा कि वो पकड़े गए हैं और अगर कोई आगे और भी इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार निकलेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। गुज़िश्ता दिनों सांगड़ में जालिम वडेरे ने अपनी जमीन से गुजरने वाले ऊंट की एक टांग काट कर अलग कर दी थी, जिसे एक फलाही अदारे ने कराची सेंटर मुंतकिल किया। IG से गुलाम नबी मेमन का कहना है कि शहर में क्राइम की वारदातें होती हैं, लेकिन दुश्मनी के वाक़यात को भी स्ट्रीट क्राइम के नाम कर दिया जाता है। डकैती या संगीन जराइम का मुकदमा फौरी दर्ज न करने पर SHO नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जावेद कामखानी की रिपोर्ट देखिए। मेमन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ज़ैनब मार्केट के करीब लगाए कैंप में ताजरों के वफ्द से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी के साथ साथ ताजिर भी ताउन को तैयार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि शहर में पुलिस का रिकवरी रेट 65% है। लोग कम मालूमात पर अपनी राय बनाकर मीडिया पर फैलाते हैं। हमारा 65% डिटेक्शन रेट है। ये दुनिया की आप गूगल करके देखें कि कराची पुलिस का अगर 65% है और वो हम आपको सारा मतलब पूरा डिटेल दे सकते हैं, जो मैंने पहले भी मीडिया के साथ शेयर किया है। इंडिविजुअल केसेस को बेस बना के अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ना आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा साथ देना होगा। हम मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। सिंध पुलिस के सरबराह का कहना था कि जराइम में मुलव्विस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कानून के तहत बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हम चाहेंगे कि उसको ना सिर्फ उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन हो, अगर उसने क्राइम किया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो। जब हम एक्शन लेते हैं तो हम पे क्रिटिसिज्म आ जाती है कि भाई ये पुलिस ऑफिसर इसमें मुलव्विस है। मैं कहता हूँ कि इसका जो पॉजिटिव पहलू है आप ये लें कि जब हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ अगर पुलिस एक्शन लेती है तो आप उसको पॉजिटिव अंदाज में प्रेजेंट करें कि पुलिस अपने रैंक में से ऐसे अफसर को निकालना चाहती है जो गलत काम कर रहे हैं। सदर मार्केट के ओहदेदारों ने IG सिंध का शुक्रिया अदा किया और शहर में सिक्योरिटी इकदामात को सराहा। तकरीबन 5 महीने से सर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं। बीच में गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, बाइकें, लेकिन चूंकि ग्रुप्स बने ना फौरन आती थी
कंप्लेन आती थी हम वीडियो से मॉनिटर भी कर लेते थे। वैसे तो खैर ऐसे मसाइल नहीं है, बस ये ईद के मौके पर चूँकि ट्रैफिक मामला में रश होता है सर बहुत ज़्यादा, तो आपकी आमद से ये कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारे दुकानदार भी थोड़ा सेटिस्फाई होंगे कि आप हमारे सर पे जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेज हैं उनके सरबराह भी मौजूद हैं और गाय बगाए दौरा करते रहते हैं। आईजी सिंध ने एसएसपी साउथ साजिद सदजोई की टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर 1 माह की तनख्वाह इनाम का ऐलान किया। दौरे के मौका पर एआईजी समेत पुलिस के अफसरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन शहरयार अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शजर सायादार तपती दोपहर में जिंदगी का बोझ लाते अहले खाना के राह का सामान करने वाले अजमत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफकत और तरबियत में उनके किरदार को उजागर करना है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है ऐसा फरिश्ता बाप के रूप में। याद रखने की बात है कि जन्नत माँ के पैरों तले है तो उसका दरवाज़ा बाप है। वो बाप जो बिला खौफ खतर लबों पर मुस्कुराहट सजाए पूरे घराने का बोझ अपने कांधों पर उठा जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों को देखकर सारी दिन की थकन उतर जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। रात को अल्लाह करता है कोई ना कोई सबक बन जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। पकड़कर चलना सिखाने से लेकर चट्टान की तरह मजबूत बनाने वाला बाप औलाद के लिए मोहब्बतों की बारिशों से भरा आसमान है। उनका सुपरमैन जो चुटकी बजाते ही सारा मसला हल कर देता है। हमारे बाबा हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, हमारे बाबा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बहुत प्यारे पापा हैं। मैं जब भी रोती हूँ ना मेरे को खिलौने चाहिए होते, मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। हाँ, मेरे पापा मेरे को चुप कराते, फिर अगले दिन मेरे को खिलौने भी दिलाते। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आते वक्त जो भी चीज़ अपने बाबा से मांगती हूँ वो मुझे हर चीज़ देते हैं और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। बाप घर के दरख्त होते हैं। दुनिया के हर कोने में रहने वाले बाप को कैमरामैन वकास लोधी और नम्रा रियासत का सलाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।